So here is a question. The first question for you. We will discuss this question. Find the exponent of 2 in the expansion of 100 factorial. So let me first try to explain you what exactly they are asking, and after that we will proceed for the process. First of all, I'll show you the exhaustive process because you should know that, and then we'll be trying to go for a shortcut, right? So that you can readily find it. So what does that mean? Actually, if you just try to express 100 factorial in terms of product of its prime numbers, prime factors, say these are the prime factors of this, many are there. So obviously they will have some powers, say n1, n2, n3, n4. What does that mean? That means 2 is coming n1 number of times when you expand this, right? If you find this, 2 is coming means I'm not talking about 2 as digits. I am talking about 2 as powers. Similarly, 2 to the power, sorry, 3 to the power n2 means product of 3 done for n2 number of times will be a factor of this. So this is our question here. They are asking you, okay, if you expand 100 factorial and you find completely the product, how many times this 2 will come out as a divisor? That's the question, right? So let us just try to see the exhaustive way first. I am choosing the exhaustive way because you should know that. Once you know the exhaustive way, then I can go for the shortcut in order to find the answer directly, right? So let us just start with the exhaustive way. Okay. So you see how we'll proceed for the exhaustive way. Just you see. Let us try to proceed. And as and when you get any doubt, you can raise the question. Okay. Otherwise, I think you will not find any doubt. I'll try to make it clear. 100 factorial. If I write it like this, then I can write it in the way 1, 2, 3, 4 up to 100. These natural numbers are to be multiplied. I am interested to know the number of 2's coming as a factor of it, right? So what I'll do at the very beginning, right? I'll just try to keep this whole set into two parts. First, I want to keep all those numbers which are having 2 as a factor, right? 2 as a factor, that means all even numbers, and then multiplied by all the odd numbers, because I am sure that none of these numbers are going to contribute anything for me in terms of 2, right? So please try to understand this particular one. Okay, now just you try to identify from 1 to 100 there were 100 digits, 100 numbers. Okay, fine. So out of that, if I just drag out all the even numbers, how many will be there? Right? That you must see. That is 50 in numbers, right? That is 50 in numbers, 50 numbers. So if this is 50 numbers, I can get here how many twos? Because every number is having 1, 2 here. Do not consider this 4, right? 4 you consider only as 2 into 2. So out of that, I can take 2 to the power 50, because from each of the number I can take 1, 2 common, and then I can pick 1, 2 कॉमन नहीं, 1, 2 ले सकते हैं हम लोग. इसके बाद रह क्या जाएगा देखो, I'll be left out with like this up to 50, and here you try to see this is of no use now, so I can write it like this m. So you can write m is equal to 1 into 3 into 5 up to 99 is a positive integer, right? Is a positive integer or natural number, whatever you would like to write. You can write this. ठीक है, कहानी खत्म इसमें. ओके, कहानी को आगे बढ़ाएंगे फिर. भाई इसमें फिर देखो 1 से 50 तक फिर आ गया. अच्छा, क्या करोगे? वहां ये यहाँ पे भी 2, 4, 6, इस बार कहां तक जाओगे भाई? 50 तक जाओगे. क्या बचेगा इसमें? शुड आई राइट इट? 1, 3, 5, 7 बचेगा, पॉजिटिव होगा. तो मैं इस बार क्या कर दिया? एम डैश बना दिया, राइट? तो एम डैश इज ए पॉजिटिव, राइट? डिटेल में नहीं लिखेंगे अभी, तुम्हें समझ में आ जाएगा. पॉजिटिव इंटीजर, दैट मींस आई हैव टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस फर्दर. ओके, 2 टू द पावर 50 आ गया. यहाँ पे कितना था में भाई? टोटल 50 था. 50 में से फिर आधा हो जाएगा, राइट?
तो 2 to the power 25 will be coming, and then you will be left out with what, 1 comma 2 comma 3 comma up to what, you will be going up to 25. क्या कहानी समझ में आया? आना तो चाहिए, ये डिफिकल्ट नहीं है, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। ओके, बहुत बढ़िया। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे अब हम। 2 to the power 20, 2 to the power 25, फिर क्या करेंगे, 2 into 4 into 8, ऐसे करके कहां तक जाएंगे हम लोग इस बार, 24 तक जाना पड़ेगा भैया, राइट। ये फिर एम डबल एस होगा। अच्छा, एम डबल एस क्या है लिखते जाना, ये सब अभी मैं नहीं लिखूंगा। एम डबल एस इज ए पॉजिटिव नंबर, राइट, पॉजिटिव इंटीजर। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो इसको करते हैं 250 प्लस 25, सॉरी 2 to the power 50 प्लस 25, और यहां से अभी देखो कितना नंबर आएगा भाई, कितना नंबर आएगा, लगातार 2 से लेके 24 तक। अगर 1 से लेके 24 तक काउंट करता तो 24 होता, लेकिन अभी आधा लिया है तो 12, so there will be 12. Very nice. So what will be left out here, 1 into 3 into 5। वैसे ये लिखने का जरूरत था नहीं, मैं फिर भी लिख दिया एम डबल एस। अच्छा, बहुत बढ़िया। सॉरी, 1 into 2 into 3, गलत बोला ये। हाँ, पूरा कंटिन्यूअस 12 तक जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो इसमें कितना जोड़ेगा फिर, ये 75 हो गया, 85, 87 हो गया, 87 2 आ गया ऑलरेडी, राइट। ओके, फिर यहां से हमें अगेन क्या करना है, 2 4 6, हमें जब तक लास्ट वाला ना मिले तब तक हमें ये प्रोसेस जारी रखना है भैया। ये हो गया। M2 M3 के M3 के बारे में लिख देना, 2 to the power 87। भाई यहां से कितना मिलेगा, अरे भाई 1 से लेके 12 तक 12 होता था, लेकिन अभी कितना होगा, 6 होगा। सो 2 to the power 6 बचेगा क्या भाई, 1 into 2 into 3 अप टू 6 तक बचेगा, राइट। एम डबल एस ट्रिपल एस है। ओके, 2 to the power 87 प्लस 6 हो गया, जितना हुआ है होने दो। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, 2 into 4 into 6 तक ही जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बना M4, राइट। अच्छा, क्या करोगे अभी, यहां से कितना आएगा, अभी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। यहां से 1 2 3 तो आएगा, फिर 4 में और एक होगा, 4 आएगा, राइट। तो इट इज 87 प्लस 6 प्लस 4, एंड यहां पे होगा एक पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ये। सो अल्टीमेटली व्हाट डिड यू ऑब्टेन, दिस इज गोइंग टू बी 2 to the power 97 इंटू पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे और कोई 2 नहीं रहेगा जहां पॉजिटिव इंटीजर लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकली जो 2 है ना, 2 को साइड बाय साइड कर करके इसको स्कैन किया एंड वी हैव टेकन आउट। सो अभी हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 factorial, in 100 factorial, right, in 100 factorial will be equal to, will be equal to, हम एक सिंबल यूज करेंगे, राइट। क्या सिंबल यूज करेंगे, e, राइट। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, या e, इस वाले में हम लोग वो वाला नंबर लिखेंगे जिसका एक्सपोनेंट हम ढूंढ रहे हैं, दैट इज 2, और यहाँ पे लिखेंगे 100 फैक्टोरियल। मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना निकला, 97। भैया देख लो, बहुत कहानी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ वी आर अबाउट टू सी हाउ टू जनरलाइज दिस एज ए फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखो, मैं साइड में पहले लिख दूंगा इसी प्रॉब्लम का, and then I'll try to tell you that this is the formula, right? You can only generate it, you don't worry about that. Okay, पहले देखो, सबसे पहले देखो, तुम्हारा जो ये 100 लास्ट वाला नंबर था, ओके सॉरी, 100 जो लास्ट वाला नंबर था, इसको 2 से तुमने डिवाइड कर दिया, राइट। 2 से डिवाइड करने से तुमको मिला था 50। सो यहाँ देखो, मैं थोड़ा सा स्पॉइल कर रहा हूँ अभी जगह को, ये 50 यहाँ आ जाता है 2 से डिवाइड करने से, ये 50 आया। फिर कितना नंबर बचा तुम्हारे हाथ में, हाउ मेनी आर लेफ्ट आउट, हाउ मेनी आर लेफ्ट आउट, 50 बचा था, 50, राइट।
50 को किससे डिवाइड किया तुमने? 4 से डिवाइड किया, सॉरी 2 से अगेन डिवाइड किया, सो तुम्हें 25 मिल गया, राइट। सो यहां से जो बचेगा उसको फिर तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कौन बचेगा भाई? 50 बचा है, 50, राइट, 50 बचा है। 50 को तुम्हें फिर 2 से डिवाइड करना है। ये बक्सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। क्यों आएगा मैं बोलूंगा। ये आया, ये 25, यहाँ देखो 50 आया, फिर जो रिजल्ट मिला उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 50 बचा था, 25 आया। नेक्स्ट कितना आया तुम्हारे पास? तुम्हारे पास यहाँ पे जब मैंने ग्रुप बनाया, यहाँ 25 बचा था, 25, लेकिन मेरे को कितना लेना पड़ा? 24, एक कम है ना। अच्छा, इसको अभी हम बैलेंस करेंगे, एन माइनस वगैरह करके हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे। 25 को 2 में डिवाइड करो, 2 से आएगा कितना भाई? आना चाहिए 12.5, लेकिन मेरे को कितना मिला था यहाँ पे? 12। मतलब यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डाले हैं, दैट इज ओनली टू मेक इट 12। सो आया 12, बहुत बढ़िया। उसके बाद इस 12 को डालना है फिर 2 से, आएगा कितना? 6। क्या मुझे 6 काउंट करके मिला था? देख लो, 12 आया ये, फिर ये 6 आया, राइट। 6 के बाद मुझे कितना मिला? 6 के बाद कितना मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा? 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिलेगा भाई? 3 मिलेगा। अच्छा, 3 मिला था ना। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 बना लिया, इसको 4 बना लिया, एक और मिलके उसको भी दिखा देते हैं। यहाँ 3 मिला, फिर तुम्हें इस 3 को आगे तक ले जाना है, फिर डिवाइड करो। इस 3 में एक क्या मिलेगा फिर? और एक 2 मिलेगा। फिर इसके बाद रिमाइंडर 1 है। उसके बाद अगर तुम कर भी लेते हो तो ये वाला 0 आएगा, राइट। सो एक्चुअली दिस इज अ फॉर्मूला, राइट, दिस इज अ फॉर्मूला। जो नंबर का फैक्टोरियल दिया हुआ है उसी नंबर को 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट को फिर 2 से डिवाइड करो, रिजल्ट को फिर 2 से डिवाइड करो, and every time you pick the greatest integers value, and then whatever are the results, you go on adding them, and then you will talk about the total number of 2 in terms of factors coming for 100 factorial, what it is, right? Am I clear to you? Right. So now how will modify it? How will we modify it? Because you see, when I try to give a formula, I should not always say that 2 is the prime factor, right? Somebody might tomorrow ask you कि 100 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट बताओ भाई, तब तो तुम्हारा डिवीजर 3 होना चाहिए। अच्छा, तब तो हमारे लिए लोचा हो जाएगा। ठीक है, इस लोचा को हम लोगों ने कैसे टैकल किया वो भी देखो, right? Instead of writing second term as 50 by 2, what we'll write, it is to be 100 by 4. How we are actually trying to keep this as 100 only. We are trying to keep this always as 100. So यहाँ पे वो लॉजिक भी मैं तुमको दे देता हूँ so that you can easily identify. जब पहले बार 2 से डिवाइड किया तुम्हारे पास 100 था, सेकेंड वाले ग्रुप को जब 2 से तुमने डिवाइड करने का कोशिश किया, हाउ मेनी आर देयर? यहाँ पे तो 2 के डिविजिबल कर दिया तुमने 2 से, और यहाँ भी तो 2 का कोई फैक्टर था, मतलब 4 से फैक्टराइज कर रहे हो इस बार 100 को। दैट मीन्स 2 बार 2 आने का मतलब है 4 से कितना बार ये डिवाइड होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट वी मेक इट इंस्टेड ऑफ 50 by 2, 10 by, सॉरी 100 by 4। नेक्स्ट विल बी 100 by इसका डबल पावर, मतलब पावर इट इज 2 स्क्वायर। सो नेक्स्ट अगेन एक 2 आ जाएगा, मतलब 8, राइट। दैट मीन्स जनरलाइज फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट इट एज, जो नंबर होगा n डिवाइडेड बाय p, then plus n divided by p square, etc. So now I am going to give you the generalized formula for it. So please just see, let me type that. So now we are going to get the generalized formula, right? So you remember this, you need not do the expansion what I did earlier at the top. It is just for knowing the exhaustive process behind the complete thing, right? So suppose you want to find the exponent of the prime p, exponent of any prime I have written, so p in n factorial. So it will be written as exponent of p in n factorial, right? That expression you try to remember. This is given by n, पहले p से डिवाइड होगा, फिर हमने n by 2 को p से, सॉरी n by p को p से डिवाइड करना है, n by p को p से डिवाइड करना है। अच्छा, तो इसका मतलब n by
पी स्क्वायर होगा n बाई पी स्क्वायर, ठीक है, वो तुम्हें खुद ही दिख जाएगा, n बाई पी स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर n बाई पी स्क्वायर को p से डिवाइड करना है, मतलब ये क्यूब, ऐसे। लेकिन कब तक चलोगे? अच्छा, कब तक चलोगे? अप टू n बाई p टू दी पावर सपोज k इक्वल टू 0, राइट। k इज जस्ट, या फिर या लिखो ऐसे, सच दैट such that k is k is first of its kind। फर्स्ट ऑफ इच काइंड बोले तो मतलब जस्ट पहला के वो होना चाहिए जहां पे ये जीरो निकले, उसके बाद तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो बेकार हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द होल एक्सपोनेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट result। Please try to note this, please try to note this, and if you have any questions, queries, you can ask me. Now we'll be writing an observation, right? Very important observation, मामूली ऑब्जर्वेशन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, राइट, क्या होगा? इन एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल, राइट, नंबर ऑफ प्राइम, एक्सपोनेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ नहीं लिखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम 2 is bigger than, right, exponent of 3, then bigger than exponent of 5, etc. Why? Because it is very clear, right? Moment you get the prime factor bigger and bigger and bigger, their occurrence, right, their occurrence in the same particular n factorial will be obviously less than the smaller primes, right? ये हमेशा हमें याद करना चाहिए। तो अगर कल को बोलेगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि 5 का एक्सपोनेंट इन 100 फैक्टोरियल इज लेस देन एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल? यस, तुम्हें सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज 2 will definitely come more number of times than 3. This is very very sure, क्योंकि 100 factorial मतलब it is continuous multiplication from 1 to 100. So this is very very important observation, and we are going to use it in some important problems. Please see this. Now using the formula only, we want to do a small question, right, so that we come to know about the effectivity of this particular problem, right, this particular formula, right? Okay, find the exponent of 3 in, say, 100 factorial only I am taking it, 100 factorial, exponent of 3 in 100 factorial निकालने दिया है, right? They are talking you, or they are asking you to find the exponent of 100 factorial in 3. Okay, so कैसे करेंगे हम लोग, right? Directly we have the formula, exponent of 3 in 100 factorial will be equal to what? सिंपल है भाई, सिंपल है। 100 को 3 से डिवाइड करोगे, प्लस उसी 100 को 3 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, प्लस उसी 100 को 3 टू दी पावर क्यूब से डिवाइड करोगे। ध्यान में रखना ये 27 है, राइट। उसके बाद 100 को 3 टू दी पावर 4 से डिवाइड करोगे, ध्यान रखना ये 81 है। इसका मतलब मेरे पास अभी जो पहला नंबर आएगा, जो 100 को 0 दिलाएगा, 100 डिवाइड बाय दैट नंबर इज 3 टू दी पावर 5, राइट, क्योंकि ये हो जाएगा तुम्हारा 243, राइट। तो 243 से ये डिवाइड करोगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रिमेंबर इट। तो इसमें कितना आएगा? 33 आएगा। 100 बाई 9 से कितना आएगा? 9 9 81, राइट। 9 10 90, 11 टाइम्स आएगा, राइट। 11 9 99, बहुत बढ़िया। इसके बाद 27 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 27 3 टाइम्स आएगा, राइट, क्योंकि 4 टाइम्स होने से 100 क्रॉस करेगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? 1 टाइम। सो यू एड अप, सो 33 44 44 प्लस 4 48, दैट मीन्स 3 to the power
48 is the maximum factor, right, or the highest factor, right, in which alone 3 is a prime factor. Am I clear to you? So this is a good question which we have to tackle very carefully. I'm bringing the other question. We'll just do one more question of this particular application only, and then we'll do one another of importance. Question number 3. Okay. Find the exponents exponent of 2 in the expansion of 33 factorial, right? If you expand 33 factorial, what is the exponent of 2? They are asking you to do that. Anyway, there's no difference like with the previous question, so I can do it. Exponent of 3, right? Exponent of 2 in 33 factorial. So my question will start like this: 33 by 2, right? Then what will be happening? 33 by 2 square. Then what will happen? 33 by 2 cube, and then 33 by 2 to the power 4, and then 33 by 2 to the power 5. Okay, if you choose to avoid the rest where 0 will start, you can do it, because now next it will be 0 only, because say 2 to the power 5 is 32. Right, after that, no matter what power you reach for 2, it will be giving you 0 as the result. So यहाँ पे कितना आएगा? 16 आएगा. बहुत बढ़िया. 4 से 32 को करोगे तो 8 8 4 जा 32. ठीक है. फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 8, राइट? 8 4 जा 32. यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा. बहुत बढ़िया. तो ये आ जाएगा 16. 16 में कितना आएगा? 2 टाइम्स. अच्छा, ये 32 है तो कितना आएगा? 1 आएगा. सो आंसर विल बी 16 into 16 plus 12, 28, 28, 31, right? 31. So what is the exponent? What is the exponent? It is 31 times. So 2 is coming for the 31 times, right? So this is the very important part of the question. Please see this. Okay, here is the next important question, which actually being asked in C mains like exams, right? Okay, find the number of zeros at the end of the number 100 factorial, right? 100 फैक्टोरियल को एक्सपांड करने के बाद इसके पीछे कितना जीरो आएगा, यही क्वेश्चन है. हाउ मेनी जीरोस विल इट एंड अप? बीच में अगर जीरो आता है तो उसके बारे में हम नहीं बोल रहे, लास्ट में, राइट? तो कितना जीरो आएगा? अच्छा, अभी तुम्हें मैं बताता हूं, तुम याद कर पाओगे. जीरो लास्ट में आने का मतलब है ये 10 से डिविजिबल होगा. एक जीरो होगा तो 10 से डिविजिबल, दो जीरो होगा तो 10 स्क्वायर से डिविजिबल. मतलब जितना जीरो उतना ही पावर ऑफ 10 से डिविजिबल. बहुत बढ़िया. सेकेंडली, 10 से डिविजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है? इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 5. मतलब मुझे यहाँ पे बस ढूंढना है 100 फैक्टोरियल में कितना कंप्लीट पेयर ऑफ 2 and 5 है. हाउ मेनी कंप्लीट पेयर्स ऑफ 2 and 5 आर देयर? So first let me explain this with the help of some statement, because it is a descriptive problem for you. Exam में वो दूसरा बात है. So you can write it like this: to find the number of zeros at the end of the number 100 factorial, we must know how many complete pairs of 2 and 5 are there in 100 factorial, right? Acha, we also know that right, number of
या फिर ऐसे लिखते हैं, एक्सपोनेंट डायरेक्टली लिखते हैं, एक्सपोनेंट of 2 in 100 factorial is greater than, right, greater than exponent of 5 in 100 factorial. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक नोट बोला था मैंने। अच्छा, इसका मतलब that is to find the number of complete pairs, right, complete pairs of 2 and 5, we only need to know how many, या फिर what is the exponent of, right, what is the exponent of 5 in 100 factorial, right? तो तुम्हें ये 100 में कितना आता है 5 का पावर, उतना ही काफी है, क्योंकि उतना ही तो पेयर बन सकता है। अगर 2 ज्यादा भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, उस 2 को पेयर नहीं बना सकते हो। तो और हमें पहले से ही पता है कि 5 इज कमिंग लेस नंबर ऑफ टाइम्स। सो डायरेक्टली क्या करोगे अभी यहाँ पे, नाउ डायरेक्टली लिखो तुम, एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू, कैसे निकलेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 100 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, भाई इससे आगे तो जाएगा नहीं, इससे आगे जाएगा नहीं, 125 बैठ गया, राइट। सो यहाँ पे कितना होगा, ये 20 हो गया, और यहाँ से 25 से 4 तो कितना हो गया, 24, राइट। तो 24 हो गया एक्सपोनेंट ऑफ 5। इसका मतलब इस 24 5 से तुम और 24 2 को जोड़ दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, पेयर कंप्लीट। सो कितना जीरोस होगा, देयरफॉर आई राइट लाइक दिस, देयरफॉर टोटल कंप्लीट, राइट, pairs of 2 and 5 in 100 factorial is 24. Therefore, number of zeros, right, at the end of 100 factorial is equal to 24. Please see this. Please see this. Okay, now we'll again start with a very important question. Question number 5C, right? Okay. Find the exponent of exponent of 80 in, right, 80 in 180 फैक्टोरियल। देखो, हमने तो प्राइम एक्सपोनेंट के बारे में बोला था भैया, बट यहाँ पे तो प्राइम को छोड़ के कंपोजिट आ गया। 80 का एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, मतलब 80 टाइम्स, और 80 टू दी पावर हाउ मच इज द फैक्टर ऑफ 180 फैक्टोरियल, यही पूछा है। अच्छा, इसको करने के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो। So we will take 80 equal to its prime factorization, right? So 16 into 5 is giving you 80. So 2 to the power 4 into 5 is going to make 80. तो जहां पे 2 to the power 4 into 5 ऐसा पेयर बन गया, मतलब 4 2 का और एक 5 का कॉम्बिनेशन बना, उसमें एक 80 बन गया। तो मुझे अभी ये देखना है कि मैं कितना तरीके से, और हाउ मेनी सच कलेक्शन आई कैन मेक 2 to the power 4, मतलब 4 2 और एक 5 का। तो इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा कि हाउ मेनी 2s आर देयर एंड हाउ मेनी 5s आर देयर। सो बहुत ही क्लियरली तुम्हें दोनों का एक्सपोनेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लो एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 180 फैक्टोरियल। इस बार हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिखते जाते हैं, ठीक है। सो यू विल बी एबल टू नो इट। 180 by 2 इज गिविंग यू 90, बहुत बढ़िया। इस नंबर को 2 से फिर डिवाइड करो, राइट। हमने बोला था ना रिजल्ट को, ये ज्यादा शॉर्टकट होगा। इसको 2 से डिवाइड करो भाई 22, इसको 2 से करो भाई 11, इसको 2 से करो भाई 5, 2 से करो भाई 5, ये 1। तो कितना हुआ भाई, ये हो गया 135, 135, 137, 157, 168, right, 168, 170, 176, right। तो 176 number of
2, that is 2 to the power 176 will be a factor of 180. बहुत बढ़िया. And what is the factor of exponent of 5? अच्छा, 180 को 5 से डिवाइड करो भाई. 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाने से फिर 36. बहुत बढ़िया. 36 को 5 से करेगा तो 5. अच्छा, 1 कितना हुआ? इट इज 30, 43, 44. 44 नंबर ऑफ क्या आया? 44 नंबर ऑफ 5 आया. अच्छा, अब तुम्हें बस देखना है कि इन दोनों को मिला के तुम कितना पेयर बना सकते हो. तो देखो यहाँ पे तो सारे तो एक साथ एक एक करके यूज नहीं करोगे. 4 का ग्रुप बनाना पड़ेगा भाई. 4 का ग्रुप. अगर 4 का ग्रुप 44 आया तो बढ़िया है, 44 टाइम्स, राइट. लेकिन कितना आएगा हमें पता नहीं है अभी. तो इसलिए क्या करोगे तुम? इसको डिवाइड करो, राइट. इसको डिवाइड कर लो. इसको किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करो. 4 से डिवाइड करो. 4 का ग्रुप बनाना है, राइट. 2 शुड कम 4 टाइम्स इन एवरी ग्रुप. तो 4 टाइम्स गया कितना? 16. 116 पापा 44. 44 आ गया, राइट. समझ में आ गया? इसका मतलब क्या हुआ भाई? 44 ग्रुप बनेगा 4 4 2 का. उसके साथ एक एक 5 फिर 44 टाइम्स मिला सकते हो. तो कैन यू नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइम्स दिस 80 विल कम फॉर दिस? इट इज, right. So I can write like this. Sorry, now नहीं होगा. Therefore just a minute, ये थोड़ा टाइप कर देता हूँ, अच्छा लिखेगा, right. So 44 groups, right, of 4 twos, right, 4 twos and 1 5 are there, right. So, right, exponent of 80 in 180 factorial is how much? 44. A great question. A great question. Please see this. Please see this. Okay, I'll just leave one or two questions for you here in continuation with this problem only. Similar at home, you will be able to practice. So, question number 6 will be there here. Sorry, I'm very sorry. Question number 6. Question number 6. You have to find the exponent of 12 in 100 factorial, right. 100 factorial. इसको कर लेना. And then you take question number 7. One more you take. Find the number of zeros at the end of 125 factorial. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसको दे दिया क्योंकि घर में करोगे तो कर सकते हो आराम से, राइट. और एक देते हैं तुम्हें, और एक क्वेश्चन देते हैं फाइंड द नंबर. अच्छा, which number, right, which of the following divides, right, divides 24 factorial. 24 factorial को नीचे में दिया हुआ कौन सा नंबर इसको डिवाइड करता है. So I am going to write the numbers for you so that you write. This first one is 6 to the power 24. Number 2, 24 to the power 6. Number 3, 12 to the power 12. And then 48 to the power 5. Now you can easily identify कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर वो हमारे पास आइडिया नहीं होता है तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ेगा. एंड रियली इट विल बी वेरी 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 बिग. इट विल बी वेरी वेरी बिग क्वेश्चन, right. So be careful about this type of questions, right. So please go through it once for 1 minute. Okay, now I am going to start with a very very important part of permutation combination, right. That is very very important part. That is fundamental principle of counting, right. Fundamental
Principle of काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, मैं इसको समझाता हूं। पहले मैं लिख देता हूं, आई राइट दिस टू, एंड देन I'll be telling you what exactly. There will be two principle, right? There will be two principle. One is addition principle. One is addition principle. So first I'm writing the addition principle. Addition principle, right? What is addition principle? You try to see. If two tasks are such that one can be done in say m different ways, and the other can be done in n different ways independently, then both the tasks can be done in just a minute, just to emphasize, I'll change the color of the ink. Can be done in m plus n number of ways. M plus n number of ways. Acha, now let me try to tell you what exactly it means. That must be also understood by you. So practical applications where we'll do that, I'm just trying to emphasize here. Just you see, I'm going to take illustration number one or example number one. Okay. Just I'll take very common example which will be very, very useful for you to understand. Suppose there are three places. I am considering three places. ठीक है, तीन प्लेस है ए बी सी, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय थ्री पार्ट्स, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय थ्री पार्ट्स, बहुत बढ़िया। फिर ए एंड सी आर कनेक्टेड बाय अनदर फोर पार्ट्स, राइट? There are four parts by which you can connect A and C. One thing we'll consider that there is no connections between A and C. Now a small question will be asked to you. If you are here at this particular point as of now and किसी ने बोल लिया, someone told you that भाई तुम निकलो B या फिर C कहीं भी, no restriction is there, तुम्हें A जाना है, B जाना है या C जाना है, बट कहीं भी जाओ तुम A में खड़ा हो गए, तो तुम्हारे पास जाने के लिए कितना ऑप्शंस बनेगा B और C तक? तो देखो, अगर तुम डिसाइड करते हो कि A से B तक जाओगे तो तुम्हारे पास तीन पाथ है, तीन पाथ कोई भी एक ले लो, राइट? यू कैन टेक एनी ऑफ द पार्ट। उसके बाद जब मान लो बी तक नहीं जाना है भाई, तो फिर तुम्हारे हाथ में कितना पार्ट बनेगा सी तक जाने के लिए? चार पार्ट। सो तुम खड़े खड़े वहां पे कितना ऑप्शंस देख सकते हो अपने लिए? भाई 60 ऑप्शन देख सकते हो। यू हैव 7 ऑप्शंस टू आइडेंटिफाई, राइट? तो इसमें 7 ऑप्शंस इसलिए हुआ क्योंकि ए से बी तक या फिर ए से सी तक जाने में कोई कनेक्शंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ए से सी तक जाओगे फिर बी तक जाने के लिए तुम्हें ऑप्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। तब ये पार्ट काउंट होता है या नहीं होता, वो दूसरे तरीका होता है हमारे लिए। सो व्हेनेवर देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन दीस टू टास्क, यहाँ पे दो टास्क है, एक टास्क ए से बी तक जाने का और दूसरा वाला ए से सी तक जाने का, दोनों टास्क अलग अलग है, इसलिए दोनों का रिजल्ट हम लोग क्या कर दिए है? ऐड कर दिए। सिंपली वी हैव एडेड दैट। ये हो गया तुम्हारा एग्जांपल 1। ओके, एग्जांपल 2 क्या है? लेट अस ट्राई टू टेक एग्जांपल 2 आल्सो, तब हमें और थोड़ा सा आसानी होगा। चलो एक काम करते हैं, मान लो चिल्ड्रंस डे में तुमने सोच लिया कि कुछ जाके अंडर प्रिविलेज कुछ बच्चों को तुम कुछ गिफ्ट दोगे, but you are a student so you cannot afford to give very high end gifts, right? तो तुम सोच रहे हो कि मेरे पास अच्छा अनयूज्ड कॉपीज है, पेन है जो अभी भी अच्छा है, कैन बी यूज्ड, तो मैं उनको डोनेट करूंगा, राइट? तो तुम चला गया, तुम्हारे हाथ में सपोज 5 कॉपीज है अनयूज्ड, बहुत बढ़िया, जिसको तुम दे सकते हो।
7 पेन्स है और उसके बाद मान लो 6 पेंसिल है। तुम चला गया किसी एक ऑर्फनेज में और जाके डोनेट करने के, लेकिन बाद में जाके वहां पे देखा भाई वहां पे तो 10-15 बच्चा है। अच्छा, तो तुम हर किसी को तो कॉपीज, हर किसी को तो पेन दे नहीं पाओगे, तो तुम्हारा दिमाग में अपने आप आ जाएगा भाई कुछ तो दे दूं, सो दैट सबको कुछ ना कुछ मिले। तो क्या करोगे, कॉपी दोगे 5 बच्चे को, फिर 7 बच्चे को तुम दे सकते हो पेन, और 6 बच्चे को दे सकते हो पेंसिल। तो तुम कितने बच्चे को टोटल एकोमोडेट कर सकोगे तब, 18 बच्चे को। सो यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस है, मतलब जिसको कॉपी दिया, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि तुमको उनको पेन देना पड़ेगा या फिर पेंसिल देना पड़ेगा। अगर ये बोला जाता तो ये एडिशन प्रिंसिपल में नहीं आता। ठीक है, कहानी क्लियर हो गया। So here is the addition multiplication principle. Oh, sorry, I did not give the heading only. Anyway, I'll give the heading. It is the multiplication principle, right? It is the multiplication principle. I just typed the heading. Just a minute. It is multiplication principle. So principle is multiplication principle, and then just a minute. I'll read out this everything and I'll explain you. Okay, very fine, very fine, great. So here, what does that say? Multiplication principle tells you that if two tasks are such that one can be done in m different ways, each of which, right, each of which is followed by another task which can be done in n different ways, then both the tasks can be done in m into n ways. सो यहाँ पे एक बात में हमें इंडिपेंडेंस नजर नहीं आ रहा, डिपेंडेंसी है। कौन सा डिपेंडेंसी, जहां ये लिख दिया कि ईच ऑफ व्हिच इज फॉलोड बाय, रिमेंबर इट, हर एक टास्क जो पहले किया उसको फॉलो करना पड़ेगा सेकेंड एक टास्क से, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। सो यहाँ पे भी फॉर योर एक्सप्लेनेशन, फॉर योर आइडिया, आई एम गोइंग टू टेक 2 एग्जांपल्स, 2 illustration, very nice illustration. I just want to connect the same examples so that you can understand it better, right? Understand it better. सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, हम 3 प्लेसेस को लेते हैं इस बार, लेकिन इस बार कहानी अलग होगा थोड़ा सा। कहानी क्या अलग है कि ए से बी तक जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स है। चलो इसको 5 नहीं 3 ही कर लेते हैं। एंड देन सपोज यू हैव से 5 number of paths or roadways or whatsoever, some ways are there to go from B to C, B से C तक जाने के लिए 5 ways है। हाँ, लेकिन ए से सी तक जाने का डायरेक्ट वे नहीं है तुम्हारे पास। तो अभी अगर किसी ने बोल दिया तुम्हें, किसी ने बोल दिया भाई तू खड़ा रहे ए में और तुम्हें जाना पड़ेगा सी तक, लेकिन बी से होके जाना पड़ेगा भैया, यू कैन नॉट अवॉइड, राइट, बी। तो ए में खड़ा होके बी सी तक जाने के लिए तुम्हें पहली बात कितना टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा और टोटल कितने वो इसमें कर सकते हो। इसमें 2 टास्क है, राइट, दिस इज द फर्स्ट टास्क, क्योंकि तुम सी तक जाने के लिए पहले बी तक तो जाना पड़ेगा ना भाई, और जब बी तक पहुंचोगे उसके बाद ना सेकेंड वाला टास्क फॉलो होगा। तो पहला टास्क तुम कितने ऑप्शंस ले सकते हो, बहुत बढ़िया 3 ऑप्शंस। उसके बाद यहाँ जब बी में पहुंच जाओगे फिर तुम्हें सोचने पड़ेगा कि 5 में से कौन सा ऑप्शन लो। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन खुला है, तो यहाँ से काउंट करो, अभी एक ऑप्शन के अगेंस्ट में 5, तो 3 ऑप्शन के अगेंस्ट में कितना होगा भाई, 15। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द, क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी मेथड ही है भाई, उसको मॉडिफाई किया गया है। दिस इज अ मॉडिफाइड कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस, राइट। सो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन डू इट। नाउ इस दोनों प्रिंसिपल को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ टास्क। यहाँ पे बस 2 टास्क के लिए दिखा दिया, we can extend it if we want for infinite, not infinite, finitely many tasks, right? Okay, example number 2 which is related to that only. I cannot remember what exactly is a number, but I am telling you that 5 copies are there with you, right? And in 7 pen and in say 6 pencil. इस बार मैं तुमको डोनेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस बार मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा है, राइट, 5 कॉपी, 7 पेंसिल और
सॉरी 7 पेन और 6 पेंसिल। ऑफ कोर्स ये तो हमेशा यूज के लिए नहीं होता है, बट मैं ऐसे अगर बोलता हूँ कि भाई इन तीनों आइटम्स को लेके तुम्हें जाना है स्कूल, और मेरा क्वेश्चन है कि तुम हमेशा एक कॉपी, एक पेन और एक पेंसिल लेके जाओगे, तो कितने दिन तक तुम इन तीनों को अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेके जा सकते हो? मतलब सेम कॉपी के साथ सेम पेन एंड सेम पेंसिल रिपीट नहीं होना चाहिए। तो तुम कैसे कर सकते हो? मान लो 5 कॉपी में से तुमने कॉपी नंबर 1 को उठाया, कॉपी नंबर 1 को उठा के तुम्हें फिर यहाँ पे 60 ऑप्शन मिलेगा पेंसिल उठाने के लिए। तो मान लो यहाँ से तुमने पेंसिल 1 को उठाया, फिर यहाँ पे कितना ऑप्शन मिलेगा भाई? 6 ऑप्शन मिलेगा। आई एम सॉरी, इट इज पेन। हाँ, यहाँ पे पेंसिल से कैपिटल पी बोल देते हैं, पेंसिल 1 को उठाने के लिए 6 ऑप्शन मिलेगा। सो कैलकुलेशन करके देखो, एक कॉपी का अगेंस्ट में 60 पेन का ऑप्शन है, एक कॉपी का अगेंस्ट में 60 पेन का ऑप्शन है, और 60 पेन में से एक पेन का अगेंस्ट में 6 करके पेंसिल का ऑप्शन है। तो इसका मतलब एक कॉपी का अगेंस्ट में 42 ऑप्शंस बनेगा एक पेन और पेंसिल सिलेक्ट करने का। तो तुम्हारे पास कितना कॉपी है? ऐसा 5। तो कितना ऑप्शन तुम्हें मिलेगा कि इन तीनों को अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनाने का? सो इट विल बी 5 into 42, दैट गिव्स यू हाउ मच? 210, सॉरी 210। मतलब लगातार 210 दिन तक तुम बदल बदल के लेके जा सकते हो, सो दैट द सेम कॉम्बिनेशन विल नॉट रिपीट। ठीक है? Now, let me try to write a concluding note here before I go for questions related to this particular principles, right? Very important note to be notified here. You be very, very careful about that, right? बहुत important note है ये. You must know that. Number one, both the principle can be extended. In fact, I have told you verbally what I am writing, extended for finite number of tasks. फाइनाइट नंबर ऑफ टास्क ये कर सकते हैं हम लोग फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन राइट FPC for fundamental principle of counting, right? So we can write FPC for fundamental principle of counting for our convenience, and the whole can be extended for any finitely many number of tasks. So now let us see and justify now the power of this particular principle. Let us just start with some questions, right? Some questions, very important questions. Okay, okay. Find the number of three-digit numbers that can be formed by using the words. Sorry, using the digits 1, 2, 3, 4, 5, and 6. If, right, there will be two parts now. Repetition of digits are not allowed. Number one, repetition of digits are allowed. Okay. So here actually we are just tasting the problems. Basically, I'll be changing the methodology of giving the questions. I'll take master problems, which will include all problems together, so that you will not have any problem to understand. एक problem 10-50 का बराबर होगा, ऐसा problem हम लोग करेंगे. पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं. First I will try to show you, explain you here, and then इसको formally answer करेंगे. थोड़ा time लगेगा, don't get bored, right? This is for you all only.
ओके, तो तुम्हारे पास कितना बनाना है, 3 डिजिट बनाना है नंबर्स बाय यूजिंग दिस डिजिट्स, और स्पेसिफाई कर दिया है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। इसमें मैं मेमोरी देने के लिए तुमको मैं एक कहानी टाइप का बोलता हूँ, समझ लो। रिपीटिशन अलाउड मतलब वो टाइप का कलम पेन जिसमें तुम रिफिल कर सकते हो रिफिल खत्म होने के बाद, मतलब सेम पेन को रिफिल खत्म होने के बाद रिफिल भर के यूज कर सकते हो, फेंकना नहीं है। और रिपीटिशन ऑफ द डिजिट नॉट अलाउड का मतलब है यूज एंड थ्रो पेन, एक बार यूज कर दिया रिफिल खत्म हो गया तो भाई उसका कोई काम नहीं है, इट इज ओनली फॉर वन टाइम यूजेस। एक बार कहीं यूज हो गया मतलब उसको भूल जाओ भाई, आप वो तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सो यहाँ पे भी ऐसे बोला। आप देखो एक 3 डिजिट नंबर कैसे दिखता है, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट इज द फॉर्म ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। ऐसा 3 बक्सा होगा, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड टेन स्क्वायर प्लेस का, या फिर वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, जैसे लिखो। अब इसमें डिजिट एक एक करके ठूसा देने का मतलब ही है टू फॉर्म द डिजिट नंबर। आप पहले देखो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में यहाँ पे ठूसाने के लिए कितना डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स यू हैव, 6 डिजिट है ना, से 1 से लेके 6 तक। जीरो का लफड़ा है नहीं, तो जीरो यहाँ आएगा या नहीं बाद में सोचेंगे दूसरे क्वेश्चन में। तो तुम भरने शुरू कर दो। तुम्हारे हाथ में 3 टास्क है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। टास्क 1 मतलब वंस प्लेस डिजिट को भरना है। तुम्हारे हाथ में 6 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन से वंस प्लेस भरेगा, 6 ऑप्शन, बहुत बढ़िया है। एक यहाँ पे डिजिट फेंक दिया तुमने, और ये नॉन यूजेबल कंडीशंस में चला गया है, राइट, वन टाइम यूज। मतलब अब दूसरे में भरने के लिए तुम्हारे हाथ में 5 ऑप्शन, और तीसरे में भरने के लिए 4 ऑप्शंस। तो तुम्हारे हाथ में टोटल कितना नंबर आएगा, 120 numbers will be there. So this is the idea how we'll proceed. Second one भी तुमको समझ में आ जाएगा जब मैं इसको आंसर लिख दूंगा। I am going to answer it, right? This is having more language, so I am typing it. My handwriting is not very comfortable, right? So you see, digits are. What are the digits? You write this. Given digits are this. ये हो गया, right? उसके बाद लिखो any 3 digit number, ये स्ट्रक्चर लिख देना। 3 digit number is of the form, कैसा फॉर्म में है, is of the form, नंबर का फॉर्म लिख लेते हैं। ऐसा 3 बक्सा रहेगा हमारे पास, राइट, 3 प्लेसेस रहेगा, विल बी हैविंग 3 प्लेसेस। हर प्लेस का नाम दे देते हैं हम लोग, राइट, विल नेम इट। इट इज द हंड्रेड प्लेस, इट इज द टेंस प्लेस, ज्यादा होने से मैं 10 का पावर यूज करूंगा, एंड देन दिस इज वंस प्लेस। सो हमने 3 प्लेस कैसे हुआ ये हमने दिखा दिया, वी हैव शोन यू द प्लेसेस। अब तुम्हें इन प्लेसेस को फिल करना है। सॉरी, ये थोड़ा इधर उधर चला जा रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, फाइन। तो अभी तुम्हें बस नंबर ए से ले लो। नंबर ए पूछ रहा है, ए में क्या बोल रहा है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ओके फाइन, हेडिंग देंगे हम, ठीक है, क्योंकि ये मैं थोड़ा फॉर्मली भी तुमको दिखा रहा हूँ, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे मेमोरी एड के लिए मैं बोल रहा हूँ यूज एंड थ्रो पेन, ये तुम्हारा मेमोरी एड के लिए है, यूज एंड थ्रो पेन, राइट, यूज एंड थ्रो। सो क्लियरली बोल सकते हो, क्लियरली one's place can be filled up in how many ways, can you tell me? 6 ways, क्योंकि 6 में से कोई भी डिजिट्स तुम यहाँ पे यूज कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 करो चाहे 2 करो चाहे 3 करो, और एक बार में तुम एक ही डिजिट यूज करोगे तो उसको आप भूल जाओ। देन एज, ये लिख दो फिर, देन एज repetition of digit is, या फिर डिजिट्स आर लिखो, कोई बात नहीं, नॉट अलाउड। सो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड अप इन हाउ मेनी वेज, कैन यू टेल मी? 5 ways, क्योंकि यूज एंड थ्रो के हिसाब से एक पेन चला गया मेरे हाथ से। एंड
then the hundreds place can be filled up in how many ways? 4 ways, right? तो यहाँ थोड़ा डायलॉग बाजी करेंगे, पहला वाला प्रॉब्लम है, बाद में नहीं करेंगे. So by FPC total number of 3-digit number, right, without repetition is equal to कितना होगा? 4 into 5, 5 into 6, right? That is equal to what? कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 120, right? 20 plus this 120, total 120 number of 2 3-digit numbers बना सकते हैं, right? So this is the answer of the question. I think it will be clear to you, right? Now I'm going to start with number B. तो B में यहाँ पे बोला है repetition can be there, repetition can be there, मतलब reusage is possible. तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक है? हेडिंग लिखना है repetition is allowed, repetition of digit is allowed. So like clearly one's place can be filled up in one's place can be filled up in 6 ways. 6 ways, okay. As repetition is allowed, repetition of digit is allowed, right? So tens place can be filled up in how many ways? Again 6 ways, right? वो ही हम यहाँ पे बताना चाहते हैं. एंड सो या फिर कंसेक्वेंटली या फिर जो भी लिखो, टेंस हंड्रेड्स प्लेस can be filled up in how many ways? Again 6 ways, right? Because you can use it, right? So now, by FPC, total number of 3-digit number, right? 3-digit number with repetition कितना होगा? ये होगा 6 into 6 into 6 into 6, right? So just a minute, let me see whether I typed it correctly or not. मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? अच्छा, डबल मार दिया यहाँ पे, 6 into 6 into 6. So that is equal to how much? 3 बार 6 को किया मतलब 216 है ना? 36 into 6, हाँ 216. So you have got 216 numbers.